Hello, dear students. This is the subtopic of Plant Kingdom presenting by Allen Digital for you. How we become able to understand the topic in a very small, stylish and interactive manner. The subtopic is life cycle of Bryophyta. बेटा आप देख सकते हैं ये ब्रायोफाइट प्लांट बॉडी जिसमें आपको नीचे कुछ दिख रहा है, ऊपर भी कुछ रेड कलर से बनाया है. ये भी प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स एंड दे आर वेरी स्मॉल एंड वेरी delicate plants. We can say them Ceophytes. They grow in cool, moist and shady places. You know, such plants which grow in cool, moist and shady places, they are known as Ceophytes. And Bryophytes are also the Ceophyte plants. Means cool, moist, shady place में grow करते हैं. और you know, दो तरह के Bryophytes होते हैं, liverworts and moss. वैसे सच ये है कि 3 types of bryophytes are there, but because our NCERT gives only 2 types, that's why we will study only the 2 types of bryophytes. And किस तरह से bryophytes अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, how they descend or how they survive in the nature, देखिए आप लाइफ साइकिल ऑफ Bryophyta from Allen Digital. बच्चों, प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की होती है हैप्लॉइड. And the haploid plant body is known as gametophyte. You know, haploid plant body which is able to make gametes is known as gametophyte. Gameto यानी gamete and phyte यानी plants. And gametes कहाँ पर बनेंगे? In the sex organs. 2 types of sex organs are there. You know, antheridia and archegonia. Male sex organ antheridia and female sex organs are archegonia. In singular, male sex organ is known as antheridium and female is known as archegonium. You know, these are multicellular and jacketed. इनके चारों तरफ स्टेराइल सेल्स की कवरिंग होती है और उस स्टेराइल सेल्स की कवरिंग को कहते हैं जैकेट. यू कैन सी हियर, देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम इन विच दिस पार्ट, ये जो आपको ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का जो नजर आ रहा है, दिस इज जैकेट एंड इसके अंदर बनता है फीमेल गैमेट. दिस एग इज नथिंग, इट इज ओनली द फीमेल गैमेट, इट इज ऑल्सो नोन एज ओवम. सिमिलरली इन मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज antheridium, this is jacket and inside the jacket there are many male gametes produced by some cells and they are haploid, able to fertilize, that's why they are known as gametes. तो ये है jacket and this is the place where many male gametes are there. याद करने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, many male gametes are formed in a male sex organ antheridium while in a female sex organ archegonium only one female gamete is formed. आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, male gametes कितने बनते हैं? Many, and they are released from the antheridium and पानी के साथ स्विमिंग करते करते फीमेल तक पहुंचते हैं, यहां से मेल गैमेट निकलते हैं. डू यू नो हाउ द मेल गैमेट्स रीच अप टू फीमेल गैमेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज फीमेल मेल गैमेट हैविंग 2 flagella. Biflagellated male gamete, it is known as antherozoid because it is motile, it needs water for fertilization, that's why it is known as antherozoid. ऐसे बहुत सारे मेल गैमेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यू ड्रॉप्स के साथ, शबनम की बूंदों के साथ, ड्यू ड्रॉप्स के साथ बहकते हुए, स्विम करते हुए कहां पहुंचते हैं? अप टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन. अर्ली इन द मॉर्निंग फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों. आपने देखा किस तरह का मेल गैमेट था? कोमा शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, मोटाइल मेल गैमेट है. और मोटाइल मेल गैमेट अगर पानी में स्विमिंग करते करते जाए, फीमेल गैमेट तक पहुंचे और फिर फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करे तो प्रोसेस कहलाता है जोइडियोगेमी. एंड फीमेल गैमेट डज नॉट कम आउटसाइड, फीमेल गैमेट बाहर नहीं आता, मेल गैमेट जाता है फीमेल गैमेट के पास. ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? oogamous fertilization. You know very well, in oogamous fertilization female gamete remains inside the female reproductive cell. Female gamete remains inside the female reproductive cell.
बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही रहेगा कौन? फीमेल गैमीट। तो फिर मेल गैमीट इसके पास आएंगे और बहुत सारे मेल गैमीट आते हैं, बट फर्टिलाइजेशन केवल एक ही करेगा। बच्चों मेल गैमीट पानी में स्विमिंग करके फीमेल गैमीट तक पहुंच रहा है, द प्रोसेस इज नोन एज जोइडियोगेमी। जूडियोगेमी भी कहते हैं, जोइडियोगेमी भी कहते हैं, जोइडोगेमी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है? यहां पर मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड they need water for fertilization. Water is must for fertilization. मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा? जाइगोट। यू नो जाइगोट इज डिप्लॉयड एंड जाइगोट में होता है बच्चों माइटोसिस। पूरा प्लांट बॉडी हैप्लॉइड था, गेमिटोफाइट था और मेल गैमीट बना, फीमेल गैमीट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज ऑल्सो diploid, means it is the product of mitosis. Mitosis, SIS singular, SES plural. बच्चों many mitotic divisions are there and zygote is forming embryo. After the embryo there is formation of diploid plant body known as sporophyte. Diploid cells का plant body क्या कहलाता है? Sporophyte. But don't forget, in the case of bryophyta, the sporophyte is not differentiated into root, stem and leaf. Rather, it is differentiated into fruit, seta and a capsule. And this sporophyte is partially or completely dependent on gametophyte plant. Unique character of bryophyta. क्या है unique character जानते हैं ना? गेमिटोफाइट मेन बॉडी है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट या partially dependent sporophyte body बनेगा and this sporophyte body is made of fruit, seta and capsule. Don't forget it is not differentiated into root, stem and leaf. बेटा इसके कैप्सूल के अंदर, अभी मैं आपको फोटोग्राफ्स डायग्राम से भी समझाऊंगा, इसके कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर मदर सेल्स and they are also diploid, but spore mother cells form spores after मियोटिक डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, स्पोर्स बनेंगे और बच्चों ये स्पोर्स फिर नीचे गिर जाते हैं, मदर प्लांट बॉडी से नीचे गिर के दे कम ऑन सॉइल, और नीचे कैसा है? कूल, मॉइस्ट, शेडी प्लेस। देयर दे विल जर्मिनेट एंड दे फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो देखिए ये नीचे वाला प्लांट बॉडी बताइए कौन है? गेमिटोफाइट। दिस इज गेमिटोफाइट मेड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स एंड इसी के ऊपर आर्किगोनियम बनी थी। आर्किगोनियम में फीमेल गैमीट बना था, फीमेल गैमीट से आके मेल गैमीट ने फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। एंड यू कैन सी हियर दिस स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कलेक्टिवली दीज थ्री पार्ट्स आर नोन एज स्पोरोफाइट। याद रखना बच्चों, यहां स्पोरोफाइट रूट, स्टेम, लीफ का नहीं, फूट, सीटा, कैप्सूल का बना है और ये गेमिटोफाइट पर डिपेंडेंट है। नीचे से क्या लेगा? गेमिटोफाइट से वाटर मिनरल्स एंड शेल्टर, और इसके फूट में सबसे पहले वाटर मिनरल्स एंड शेल्टर है और वहां से ऊपर पहुंचेंगे कहां पर? कैप्सूल में। सीटा से होकर के कैप्सूल में, कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स, और स्पोर्स मियोसिस का प्रोडक्ट हैं, दे आर हैप्लॉइड। तो बच्चों दो तरह के ब्रायोफाइट्स, एक हिपेटिकोप्सिडा और दूसरा मोसिस। हिपेटिकोप्सिडा आर कॉमनली नोन एज लीवरवर्ट्स। और देखिए दोनों को एक एक करके लेते हैं, किस तरह से लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं। दिस इज गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी ऑन विच दिस इज आर्किगोनियम एंड दिस इज एंथेरिडियम। आपने देखा एंथेरिडियम बना है और आर्किगोनियम बना है, एक पे ही बना है, दोनों एक पर ही बनेंगे तो ऐसा प्लांट बॉडी कहलाएगा मोनोइसियस। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में एंथेरिडियम से क्या निकलेंगे? एंथेरोजोइड्स, दे आर biflagellated male gametes. Water is must for their fertilization, means they will perform zoidiogamy. क्या करेंगे? ये एंथेरोजोइड्स निकल करके फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जाएंगे और फीमेल गैमीट से एक मेल गैमीट को फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा? जाइगोट। एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉइड जनरेशन। फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉइड जनरेशन कौन है? डिप्लॉइड जनरेशन की फर्स्ट सेल जाइगोट। अब ये सब कुछ कहां बन रहा है? यहीं पर, इसी जगह पर, ये गेमिटोफाइट बॉडी के ऊपर बन रहा है। इस जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और
माइटोसिस का प्रोडक्ट होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज अगेन डिप्लॉयड एंड एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। देखिए बच्चों, फ्रूट सीटा कैप्सूल का बना स्पोरोफाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस गेमिटोफाइट एंड यू नो इन दिस कैप्सूल के अंदर क्या बनती है? स्पोर मदर सेल्स। याद रखना बेटा, स्पोर मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन ए कैप्सूल, और कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल्स बनी है दे अंडरगो मियोसिस एंड स्पोर्स बनेंगे। ऐसा मियोसिस जो स्पोर बनाता है कहलाता है स्पोरिक मियोसिस, और वी कैन से स्पोरेडिक मियोसिस। एक ही बात है, स्पोरिक मियोसिस और स्पोरेडिक मियोसिस। नीचे गिर जाएंगे ये स्पोर्स, कैप्सूल से नीचे गिर गए हैं स्पोर्स एंड दे ग्रो, दे जर्मिनेट ऑन सॉइल, बाहर आकर के जर्मिनेट करते हैं और नीचे कूल मॉइस्ट शेडी प्लेस में जर्मिनेशन होगा। बेटा ब्रायोफाइट्स में जर्मिनेशन दो तरह का होता है स्पोर्स का, एक डायरेक्ट जर्मिनेशन और दूसरा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। लीवरवर्ट्स में यानी हिपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स में जर्मिनेशन होता है डायरेक्ट। बेटा देखिए ये है स्पोर, इसने किया जर्मिनेशन और जर्मिनेशन से इस तरह की लीवर लाइक ब्रांचेस बना दी, और लीवर लाइक ब्रांचेस बनी है और इन्हीं ब्रांचेस से फिर पूरा बॉडी बन जाएगा, गेमिटोफाइट बन जाएगा और क्या कहेंगे उसको? लीवरवर्ट। एक स्पोर से एक लीवरवर्ट बनता है। आपने देखा स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मोसिस में दे आर सेकेंड काइंड ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड आपने देखा इस पूरी लाइफ साइकिल में मेन बॉडी कौन है? मेन बॉडी तो है हैप्लॉइड। बच्चों मेन बॉडी कैसी बॉडी है? हैप्लॉइड। और शॉर्ट लिविंग बॉडी कौन है? शॉर्ट लिविंग होता है स्पोरोफाइट जनरेशन यानी डिप्लॉइड जनरेशन। और इस तरह की लाइफ साइकिल को क्या कहेंगे? द लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा देखना, एक मैं एक लाइन बना रहा हूं, आप चेक करिए। इस लाइन के लेफ्ट साइड में और इस लाइन के राइट साइड में, इस लाइन के लेफ्ट एंड इसके राइट साइड में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए ये साइड, दिस साइड इज मेड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड का बना हुआ है, और बच्चों इस साइड में कौन है? डिप्लॉइड है। और इस तरह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों जनरेशन है, दैट्स व्हाई द लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों भूलना नहीं है, हैप्लॉइड जनरेशन मेन जनरेशन है, डिप्लॉइड जनरेशन शॉर्ट लिविंग है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। And in liverworts, the spores are performing direct germination. The second kind of bryophytes given in the book NCERT, they are Bryopsida. Commonly they are known as moss. Beta they are also known as massai. Mosses का ही दूसरा नाम है massai. और इस वर्ड का मीनिंग होता है very compactly arranged plants. ये प्लांट इतने ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं कि बच्चों इनको टच करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कारपेट को टच किया हो। They make dense mat on the soil. सोइल के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर या कूल मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पर डेंस मैट बनाते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। दैट्स व्हाई these plants are commonly known as moss. देखिए मोस के प्लांट बॉडी में दो पार्ट होते हैं बेटा, एक प्रोटोनीमा और दूसरा होता है इरेक्ट लीफी गेमिटोफाइट। ये जो आपके सामने दिख रहा है दिस इज इरेक्ट लीफी गेमिटोफाइट और वी कैन ऑल्सो से इरेक्ट लीफी शूट। प्रोटोनीमा जो मैंने अभी बताया आपको, जस्ट अभी आपको आ जाएगा समझ में कैसे बनता है। तो बेटा इस इरेक्ट लीफी शूट में आप देख सकते हैं ये नीचे वाले हैं, दे आर राइजोइड्स एंड दिस इज मेन एक्सेस और ये है लीव्स। दे आर नॉट ट्रू लीव्स, दे आर मेड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। और बच्चों इन्हीं ब्रांचेस के टॉप पे बनते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एपाइसेज। एपेक्स को प्लूरल में बोलते हैं एपाइसेज। एपाइसेज पर बनते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये देखिए एंथीरिडियम बना, ये है आर्किगोनियम। एंथीरिडियम में से निकलेंगे बहुत सारे मेल गैमीट्स, दे आर नोन एज एंथेरोजोइड्स। इसी तरह से आर्किगोनियम में से कितने फीमेल गैमीट बनेंगे? एक आर्किगोनियम में एक फीमेल गैमीट, और निकलेंगे कितने बाहर? 0, एक भी बाहर नहीं आता, एक ही बनता है, अंदर ही रहता, बाहर आता ही नहीं है। तभी तो याद करिए हमने कहा था ऊगेमस फर्टिलाइजेशन। बच्चों आर्किगोनियम के अंदर एक बना, एक का ही दूसरा नाम है फीमेल गैमीट, और
मेल और फीमेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉयड जनरेशन। बेटा यू नो एंथेरोजोइड्स नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। वही उसी तरह से जैसा पहले पढ़ा फर्टिलाइजेशन होगा और मेल और फीमेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। जाइगोट डिप्लॉयड है, आगे माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोसिस करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। द सेम, अभी तक कुछ भी नया नहीं है। हाँ, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी थोड़ी सी डिफर थी। ब्रायोप्सिडा की गेमेटोफाइट बॉडी इरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट है और आपने लीवरवर्ट में आपने देखा था प्रोस्ट्रेट बॉडी थी लीवरवर्ट की, यहां इरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट है। बस यही बेसिक डिफरेंस है, आगे बाकी काफी कुछ सेम है। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। बेटा यही इसी के ऊपर जहां आर्किगोनियम थी वहीं पर स्पोरोफाइट। ये देखिए, ये नीचे वाला पार्ट कौन है? दिस इज गेमिटोफाइट। इसी के ऊपर कौन बना? स्पोरोफाइट। बेटा फूड सीटा कैप्सूल का बना स्पोरोफाइट। एंड गेमिटोफाइट इज अगेन मेड ऑफ राइजोइड्स, मैन एक्सिस एंड लीव्स। एंड again we can say the sporophyte is dependent on gametophyte and you know इसके कैप्सूल में क्या बनती है? स्पोर मदर सेल्स। the sporophyte is again dependent on gametophyte and in capsule spore mother cells are forming and they undergo meiosis. the meiosis which forms spores known as sporic meiosis. अब ये स्पोर्स नीचे गिरेंगे ऑन सॉइल एंड नीचे गिर के क्या बनाएंगे? they will perform indirect germination. आपने पढ़ा बेटा लीवरवर्ट्स में होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन या होगा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में पहले बनेगा प्रोटोनीमा। बेटा ये आपने देखा ग्रीन क्रीपिंग स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा के 4 कैरेक्टर्स आपको याद करने हैं। पहला, इट इज ग्रीन, इट इज क्रीपिंग का मीनिंग जानते हो ना? प्रोस्ट्रेट। और फिलामेंटस होता है, इसका बॉडी फिलामेंट का बना होता है बच्चों, और इस पर बनती है लेटरल बड्स। क्या बनती है इस पर? लेटरल बड्स। तो देखा बेटा आपने कि स्पोर पहले डायरेक्टली न्यू प्लांट नहीं बना रहा, पहले स्पोर जर्मिनेट करके बना रहा है प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा बना, इस पर ये बड्स बनी है बच्चों, और इन्हीं बड्स से क्या बनेगा? इरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट। अब बताइए, अगर 100 बर्ड्स बनी है तो एक स्पोर से ही 100 बर्ड्स, और 100 बर्ड्स से 100 न्यू प्लांट्स बन जाएंगे। क्या प्रूव हुआ? दे विल बी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड प्लांट्स। कैसे प्लांट्स होंगे? सब के सब बहुत ज्यादा पास में लगे हुए प्लांट्स होंगे, और ऐसे प्लांट्स हैं, इसी वजह से इनको कहा गया मॉस। याद आ गया आपको? तो ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में आपने इंपॉर्टेंट बात देखी, गेमेटोफाइट थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अच्छा है, मोर इलेबोरेटेड गेमेटोफाइट। कैसा गेमेटोफाइट है? मोर इलेबोरेटेड गेमेटोफाइट। बेटा इलेबोरेटेड का मीनिंग याद है ना सबको? मोर डेवलप्ड गेमेटोफाइट देन दैट ऑफ लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स से ज्यादा अच्छा गेमेटोफाइट है। और यही नहीं, स्पोरोफाइट भी कैसा है? मोर इलेबोरेटेड गेमेटोफाइट एज वेल एज मोर इलेबोरेटेड स्पोरोफाइट। और बच्चों बहुत अच्छा गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, मोसिस में, ब्रायोप्सिडा में। दूसरा डिफरेंस आपने बड़ा देखा, यहां स्पोर का जर्मिनेशन इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है, जिसमें पहले प्रोटोनीमा बना, फिर उस पर बर्ड्स बनी है, बर्ड्स से फिर इरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट बनता है। लीवरवर्ट में ऐसा नहीं था, स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके नया लीवरवर्ट प्लांट बॉडी बना रहा था, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना रहा था। लेकिन दोनों की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड जनरेशन भी है, डिप्लॉइड जनरेशन भी है। दिस इज हैप्लॉइड जनरेशन नोन एज गेमेटोफाइट एंड दिस इज डिप्लॉइड जनरेशन नोन एज स्पोरोफाइट। लाइफ साइकिल इज अगेन रिगार्डेड एज हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सबको बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बच्चों जितना कुछ सीखा उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर। कैसे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स? पहली बात, दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर सराउंडेड बाय, दे आर प्रोटेक्टेड बाय ए जैकेट। व्हाट इज जैकेट? जैकेट इट्स अ कवरिंग ऑफ स्टेराइल सेल्स। व्हाट इज द आंसर? यूनिसेलुलर? नो। जैकेटेड? यस। यूनिसेलुलर? नो। नॉन जैकेटेड? नो। Multicellular? Yes. Jacketed? Yes. Multicellular? Yes. Non-jacketed? No. So the right answer is third, that is multicellular and jacketed.
सबको एक बार में समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is the first cell of sporophytic or diploid generation? याद करिए बेटा, gametes are the last cell of haploid generations and they undergo fertilization. फर्टिलाइजेशन करके क्या करते हैं? जाइगोट बनाते हैं। द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉयड जनरेशन। एक बार फिर से रिवाइज देखो, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम से निकले एंथेरोजोइड्स, आर्किगोनियम के अंदर एग, फीमेल गैमेट, बोलो फर्टिलाइजेशन करके मेल और फीमेल गैमेट ने बना दिया जाइगोट। दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉयड जनरेशन। समझ में आ गया सबको? द राइट आंसर इज जाइगोट। एंड क्वेश्चन नंबर 3, मेल gametes of bryophytes are, अभी आपने पढ़ा, इट्स वेरी सिंपल, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, दे आर कोमा शेप्ड, बाइफ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। अभी आपने देखा इस तरह के मेल gametes थे, 2 flagella they have and they are motile, they need for water for fertilization. Question number 4, in bryophytes male sex organ and female sex organs are respectively, अपने आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मेल सेक्स organs are एंथेरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। ये देखिए, ये रहा एंथेरिडियम, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, एंड आर्किगोनियम इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन रेस्पेक्टिवली। द आंसर इज एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। बेटा डेफिनेटली आपको पूरा ब्रायोफाइटा रिवाइज हो गया है। पूरा ब्रायोफाइटा में जो भी 2 टाइप्स हैं, बिल्कुल शानदार कंपैरिजन आपका तैयार हो गया है।